Allah, we are learning about P block elements in class 12th, that is unit 7. And in P block elements, Allah, we are learning group 16 elements. It is also called as 6A subgroup. In such topic today, we will talk about simple oxide. सिंपल ऑक्साइड्स क्या हैं और उनके बारे में हम आपको डिस्कशन बताते हैं। आप सभी बच्चों को पिछले क्लासेस में ये बताया जा चुका है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इन जनरल इट इज कॉल्ड दैट मेटल ऑक्साइड सच एज सोडियम ऑक्साइड or magnesium oxide or calcium oxide. These are basic in nature. It is basic concept. When they are treated with aqueous media, after coming in the contact of aqueous media, that is water vapor, they form corresponding bases according given reaction. But it is not applicable that always metal oxide act as a base. हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक जनरल फार्मूला हो गया कि अगर मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा। ये कंसेप्ट है, ऐसा नहीं आपको पालना चाहिए। जैसे क्रोमियम के ऑक्साइड की बात करें, कुछ हायर ऑक्साइड्स जो हैं, हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, दे एक्ट एज एसिड्स आल्सो। And metal oxide may express both the character, such as aluminium oxide. If you are talking about aluminium oxide, it is metal oxide. Aluminium oxide act as acidic as well as basic both. When it is treated with NaOH, a salt sodium meta-aluminate, sodium meta-aluminate salt is obtained, Na2AlO2 and H2O. Salt plus water आप जानते हैं कि बेस एंड प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये कॉमन सा कंसेप्ट है। इसका सेंस हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज एसिड it behaves like acid because when it is treated with base, salt, sodium meta-aluminate is obtained. When it is treated with acid, such as HCl, then also give rise a common salt, aluminium chloride, also expressed as Al2Cl6. And water molecules. That means aluminium oxide act as base.
It shows that metal oxide act as acid as well as base, both same metal oxide, and it is called as amphoteric nature because acidic as well as basic, both the characters are expressed. So it is called as amphoteric nature. Amphoteric means dual behavior. तो आपका ये कंसेप्ट जो है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, उसको आप देख रहे हैं कि ये तो आपका जो कंसेप्ट था वो रिजिड नहीं होता, इट वेरीज अकॉर्डिंग सिचुएशन. मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, डिस्क्रोमेट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, etc. act as acid or acidic in nature. हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं. हम उन टॉपिकों को आज उधेड़ रहे हैं जो कि आपको 10th क्लास में एक यूनिट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पर आपके दिमाग में ये फीड हुआ होगा. वहाँ शॉर्ट में ये बताया गया था कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. हम आज उसी कंसेप्ट को उखाड़ करके और फेंक दे रहे हैं. हम नहीं उखाड़ कर फेंक रहे हैं, ये कंसेप्ट पहले से ही जो लोग जानते हैं. लेकिन अगर हमें क्लास 10th में पढ़ाते हुए बच्चों को सब पूरा डिस्कशन करने लगेंगे तो हमारे बच्चे जो क्लास 10th के हैं वो ना तो क्लास 10th में जितना सीखना चाहिए काम की वही सीख पाएंगे और ना यही सीख पाएंगे. तो ऐसे कंडीशन में उनको छोटी सी बात बताकर छोड़ दी जाती है. लेकिन आप वहाँ से हट करके और अपनी डिटेल नॉलेज को, अपनी नॉलेज को ब्रॉड कर रहे हैं, आप वहीं पर रिजिड नहीं रह जाते. इसीलिए छोटा बच्चा और बड़े बच्चे का डिफरेंस निकाला जाता है कि आप बड़े हो गए, now you are in class 12 and going to be a doctor or engineer after few time, after few months. So it is necessary that always you should attempt about all the questions and be serious about all the points. Try to understand that a single straight line is not applicable in science. There are large number of branches. You have already got that base metal oxides, except it is a general concept that metal oxides are basic in, as I have already explained you in first our previous example, sodium oxide and calcium oxide, magnesium oxide, etc. But then you are getting another behavior of metal oxide like aluminum oxide. Aluminum is also a metal. It shows amphoteric nature, that is acidic as well as basic both. And if you are moving few more of metal oxide like manganese oxide, chromium oxide, vanadium pentoxide, etc., then you will find that they are acidic in nature. आपका जो कंसेप्ट था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं वो पूरा कंसेप्ट आज अधूरा हो गया. ये पता लग गया कि आपके वो पहले उतना ही केवल जानना आपका इनकम्प्लीट नॉलेज था. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रही बात? आर यू पेइंग अटेंशन?
अब हम बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट जो हमारा था, हमारी आज ये चर्चा मेटल ऑक्साइड पर ही थी। कुछ मेटल के कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जो ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और ना ही बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्साइड 6+, एक मिनट देखें, उन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ऑक्साइड जिनका बिहेवियर ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, उन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ ले तो इन जनरल आपने बताया है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। वो कंसेप्ट जो था पहले तो उस पर आप क्लियर हो गए। तो भाई या तो मेटल होता है या तो नॉन मेटल होता है। तो आखिर में हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहाँ से लाए? देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी नॉन मेटल के ही ऑक्साइड हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में तो हमारा कंसेप्ट ये था कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, but really all of these are neutral in nature. तो ये कंसेप्ट आप क्लियर करें तभी क्वेश्चन के आप आंसर देने में एलिजिबल हो पाएंगे। हम समझते हैं कि आपको पूरी बात लगभग पूरी बात ऑक्साइड के बारे में जो डिस्कशन किया गया वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज इस कंसेप्ट को आप रिवाइज करें और रिवाइज करके एक बार दोहरा करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उस पर डिस्कशन करके हमसे और कंसेप्ट को अपने और भी क्लियर कर सकते हैं। डिस्कशन करने के लिए आप कमेंट करके, वीडियो पर कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पे 9919785097 पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या क्लासरूम में आप मिलते हैं तो क्लासरूम में भी आप हमने डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज इस ऑक्साइड की चर्चा को जो हमने किया इसको ठीक से आप दोहराएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ कोई प्रॉब्लम है तो उस पर डिस्कशन करें और फिर अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।